both एशिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। शी हैज ब्रॉट गोल्ड मेडल फॉर इंडियन साउथ एशियन फेडरेशन गेम। या अभी ये लोग सब लंदन गए थे रग्बी खेलने के लिए। ये सब हॉस्टल से So good evening everybody present here. Our most distinguished guest of today's functions, our Honorable Minister of Railway, Government of India, respected Sri Suresh Prabhakar Prabhuji. Our respected also Madam Uma Prabhu. Our also Honorable Minister of State for Railway, respected Sri Manoj Sinha ji. We have also with us on the dais respected Rajiv Bishnoi ji, General Manager of the East Coast Railway, and also Madam Bishnoi ji, present on the dais. Our Secretary of the Kit and Key Society, respected R.N. Das ji, our CEO of KIS, Dr. Prashant Kumar Rautra, all the other respected invited guests, officials from the railway. Today definitely is a very special day for all of us because of the entire Indian Railways family has come to us, and KIS holds the privilege for having the two most important functionaries of the railway, the Union Minister and also the Minister of State amidst us. Both the ministers are political heavyweights and charismatic, hence need no introduction. But since I am interested with the task of making a formal welcome address, I would like to do my duty, of course, with the permission of the esteemed guests. So, I think India never had a multifaceted personalities like Sri Suresh Prabhakar Prabhuji as its railway minister, a rank holder in chartered accountancy examination, PhD in climate change from Free University Berlin, and PhD in public finance from the Mumbai, and honorary doctorate from the reputed universities, speak for competence of Sri Prabhuji in diverse fields. What can a mortal like me say about a person working on 16 global organizations and 9 strategic dialogues, readings on subjects varying from students' unrest, causes and consequences of mass employment of youth, North-South cooperation, socio-economic issues, NGO contribution towards peace and problems of youth in third world countries. I fail in my words to describe Sri Suresh Prabhuji, the man who had the courage to call off his visit to Wharton, protesting against the cancellation of Sri Narendra Modi's
keynote address at the Wharton India Economic Forum in 2013. Sir, you are rightly described as that uncommon whiff of much needed fresh air on the horizon of Indian politics, which is not only earned with education, ability, understanding, high integrity, zero corruption, and at the one to deliver milestones. In your 13 days stint as minister, you made the efforts to create transparency in the functioning of the ministry and clearance of pending works. Your stint as the Minister of Industry, Minister of Environment and Forest, Minister of Fertilizers and Chemicals, Minister of Power, and now the Minister of Railways have made you an outstanding politician with the courage to listen criticism so that you could reorient the policy towards the greater common good. I bow my head down before you, sir, and I take this unique privilege to welcome you here in the premises of KIIS. So on behalf of the entire staff, students, management of KIIS, on behalf of these 25,000 children present here, on my behalf, I welcome you, sir, to this premises of KIIS, and we express our thanks, gratitude for your kind presence to grace this occasion, to bless these children. मेरे मित्र तथा साथी मनोज सिन्हा जी, रेल के जनरल मैनेजर, उनके परिवार के सभी सदस्य, डॉक्टर समंता, डॉक्टर रोटरी, और यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आए हुए सभी छात्रगण, मैं समझता हूं जैसे आपने कहा कि सही मायने में ये विश्व की एक ऐसी अनोखी पहचान होगी, विश्व में एक ऐसी अनोखी पहचान होगी कि जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में जंगल में रहने वाले अपनी परंपरा को निरंतर बरकरार रखते हुए जीवन जीने वाले ट्राइबल लोगों के लिए इतने बड़ी मात्रा में किसी ने शिक्षा का इतना बड़ा दालन खोला होगा। 25,000 छात्र एक समय इसी जगह पर पढ़ना, उनके लिए इतने बड़े मात्रा में एक सेवाएं उपलब्ध करना एक बहुत बड़ा कार्य आपने किया, इसलिए आपको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि शिक्षा का मतलब क्या होना चाहिए। शिक्षा तो पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, अलग अलग विषयों के ऊपर हमको ज्ञान अवगत होना चाहिए। आप तो पढ़ते भी होंगे, साइंस है, लिटरेचर है, सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग पढ़े जाए। और आपके जो जहाँ पढ़ाई का दान करने वाले जो शिक्षक है वो भी आपको काम करते हो। मुझे लगता है और एक काम आप करते ही होंगे, लेकिन मैं दोबारा उसको दोहराना चाहता हूँ। ये सभी लोग अब एक यूनिफॉर्म में आए। यूनिफॉर्म इसलिए है कि हमें ये नहीं किसी को एहसास होना चाहिए कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। सबको हमें यूनिफॉर्म में लाया, और ये स्कूल का एक काम भी होता है कि जब पढ़ने के लिए आता है वो छात्र के नाते आता है, तो फिर उसका परिवार क्या है, उसकी आमदनी क्या है परिवार की, उसके बारे में हम नहीं सोचते। लेकिन खास करके शिक्षा में ये भी एक कमी रहती है कि अभी हम सभी को एक ही शिक्षा देंगे तो शायद उन लोगों में जो आत्मनिर्भर होने के लिए, अपने आप को उभरने के लिए ऐसे जो गुण होंगे उसके ऊपर शायद हम ध्यान नहीं देंगे। और खास करके ये बात हमारे ट्राइबल बच्चों के बारे में ज्यादा, क्योंकि ट्राइबल लोगों ने अपनी एक परंपरा सदियों से जारी रखी है, और इसलिए यूनिफॉर्म तो डालना ही चाहिए ताकि यूनिफॉर्म शिक्षा हो गई, लेकिन साथ साथ में यूनिफॉर्म के आगे जाकर अपनी उनकी जो पहचान है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास है, उसको हम किस तरह से ज्यादा आगे ला सके, इसको ऊपर भी सोचना चाहिए।
मुझे मालूम है, मैं अभी देख रहा था, छोटी छोटी बच्चे होते 5-6-7 साल की उम्र आप यहाँ पे काम करें, ऐसे हर बच्चे नेचुरल डांस करें। आजकल शहरों में डांस एकेडमी में जाना पड़ता है, तो उनके परिवार को धन इकट्ठा करना पड़ता है ताकि मेरे बच्चे को मैं डांस स्कूल में भेजूं। यहाँ पर डांस स्कूल को भेजने की जरूरत नहीं, वो डांस तो पहले ही कर रहे। हमारे पास ऐसे कुछ स्पोर्ट्स है जैसे कि आर्चरी है, तीरंदाजी, वो करने के लिए भी बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, उसमें भी 1000 रुपए की फी देनी पड़ती है। हमारे ट्राइबल बच्चे तो आर्चरी वैसे ही कर देंगे। तो मुझे लगता है यही जो अपने आप में सदियों से चलने वाली ये जो कला है, इसको आगे लाने के लिए भी हमें किस तरह से काम किया जाए, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। और साथ ही में जैसे मेरे मित्र मनोज सिन्हा जी ने आपको बताया कि देश हमारा तरक्की कर रहा है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी तो उसके लिए पूरी तरह से कोशिश करें और इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी हो। लेकिन साथ में ये हमारी एक चुनौती है कि ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है उसको हम किस तरह से किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा उसको खराब नहीं होगी। और हमारी संस्कृति सबसे ज्यादा दिखाई देती है हमारे आदिवासी भाइयों में, हमारे ट्राइबल लोगों में दिखाई देती है। उन्होंने उस हमारी परंपराओं को आज तक इतने सालों से पूरी तरह से रक्षा करके रखा हुआ है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये दोनों चीज साथ में करें। एक जगह तो आदमी का विकास होने के लिए शिक्षा की आवश्यकता देना ही चाहिए, और साथ ही में हर व्यक्ति में, हर बच्चे में जो एक अलग अपने आप में जो ताकत है उसको भी आगे लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आप दोनों करेंगे ऐसा विश्वास रखता हूँ। मैं ये दोनों चीज के लिए कह रहा था कि रेल में भी ऐसा होता है, दो पटरी नहीं होगी तो रेल चल नहीं सकती। एक पटरी के ऊपर रेल चलेगी, चलती है कई जगह पर, लेकिन दोनों पटरियों के ऊपर ही रेल चल सकती है। इसलिए दोनों चीज साथ में होनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा और साथ साथ में पारंपरिक हमारी होने वाली जो कला है उसका भी जतन। तो दोनों चीज करेंगे तो रेल ज्यादा दौड़ेगी, जिंदगी ज्यादा और तेज चलने में आपको कामयाबी मिलेगी। और मिलने के लिए आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ये चाहता हूँ जितने बड़े छात्र, इतने छोटे छोटे बच्चे, उन्हें मानता है अपने पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कहीं ऐसा किया नहीं होगा। तो डॉक्टर सामंता जी, आपको तो नोबेल प्राइज मिला है इतना बड़ा काम करने का, इतना बड़ा काम आपने किया। कलिंगा के नाम से इंस्टीट्यूट चलते, कलिंगा तो हमारा आज भी देश की जो पहचान है वो कलिंगा एम्पायर से की जाए। और हम भी आज भी सोचते हैं कि किस तरह से कलिंगा एम्पायर जैसा था, ऐसा हमारा देश कैसे बने। तो मैं मानता हूँ कलिंगा एम्पायर जैसा बनना है तो दोनों चीज करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था बढ़ोतरी हम करेंगे ही करेंगे, वो काम हमारे पर हम सब लोग मिलकर करेंगे। लेकिन आप ये भी काम करिए कि हमारी कलिंगा से आती हुई और उससे पहले से चलती हुई जो हमारी संस्कृति है उसका भी जतन हम किस तरह से करें, इसके ऊपर भी ध्यान रखें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इतने बड़े मात्रा में आप जो काम करें, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे बच्चे आगे आने वाले दिनों में देश के लिए ओलंपिक मेडल भी लेके आएंगे, गोल्ड मेडल भी लेके आएंगे। आपसे बहुत सारे बच्चे कला में इतना काम करेंगे कि विश्व में विकासों का नाम लोग भूल के आपका नाम याद रखेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि आगे वाले आप में से कुछ बच्चे इस तरह से काम करके साइंस टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, लेकिन वो करते हुए दोनों चीज याद में रखिए तो आपकी तरक्की और ज्यादा होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।